السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا ہمارا ویڈیو اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے، جو غلط فہمی ایک پروپیگنڈے کے تحت لوگوں کے دماغ میں بھری گئی ہے، اور وہ غلط فہمی یہ ہے کہ اسلام بزور تلوار پھیلایا گیا ہے، جس کو لے کر میڈیا اور عوام میں بحث ہوا کرتی ہے۔ اسی غلط فہمی کو دور کرنے کی آج کے اس ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام سے متعلق تشہیر شدہ بدگمانیوں میں سے ایک بڑی بدگمانی یہ بھی ہے کہ اسلام کی توسیع میں تلوار کا رول بڑا اہم رہا ہے۔ تاریخ کی نصابی کتب اور متعصب میڈیا کی جانب سے مسلسل یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اسلام بزور قوت ہی دنیا کے وسیع خطے پر قدم جما سکا۔ ہندوستان چونکہ ایک کثیر مذہبی اور کثیر اللسان ملک ہے، لہٰذا یہاں سیاسی اغراض کی خاطر عوام میں تفرقہ پیدا کرنا سیاسی جماعتوں کی حکمت عملی کا حصہ رہا ہے۔ ایسا مواد جو لوگوں کے دلوں میں دوسرے فرقے کے تئیں نفرت پیدا کر سکے، اپنی منہ مانگی قیمت حاصل کر سکتا ہے۔ لہٰذا مورخین و مصنفین کی ایک متعددہ جمعیت نے بازار کی اس مانگ پر توجہ دے کر ایسا کثیر مواد جمع کر لیا ہے جو اب میڈیا اور درسی کتب کا حصہ ہے۔ غالباً یہ برطانوی راج کی پالیسی تقسیم کرو اور حکومت کرو، رول ڈیوائیڈ اینڈ رول کا حصہ ہے، جو آج کے فسطائی قوتیں مختلف فرقوں کو لڑانے کے لیے استعمال کر رہی ہیں۔ اسلام کے بزور قوت پھیلائے جانے کے الزام کے جواب میں اتنا کہنا کافی ہے کہ مسلمانوں کے 650 سال دور حکومت کے باوجود ہندوستان میں مسلمانوں کا تناسب محض 13% ہے۔ اگر مسلم حکمرانوں نے اسلام کی توسیع کے لیے قوت کا استعمال کیا ہوتا تو یہ تناسب بہت اونچا ہوتا۔ دراصل مسلم حکمرانوں نے اسلام کی توسیع کے لیے کوئی کوشش نہیں کی۔ اسلام کی تبلیغ زیادہ تر صوفی سنتوں کے ہاتھوں عمل میں آئی۔ موجودہ دنیا پر سرسری نظر ڈالی جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ موجودہ دنیا کی 7 ارب آبادی میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 170 کروڑ ہے۔ ان میں عربوں کی آبادی محض 22% ہے۔ اسلام کا عروج جزیرہ نما عرب سے ہوا تھا، مگر مسلمانوں کی سب سے کثیر آبادی کا ملک انڈونیشیا عرب سے تقریباً گلوب کی نصف گولائی کے قریب دور بسا ہوا ہے۔ اسی طرح جنوب ایشیائی ممالک میں مسلمانوں کی آبادی 70 کروڑ سے زائد ہے، اور یہ آبادی متفرق اللسان ہے۔ کل مسلم آبادی کا 30% حصہ بحیثیت اقلیت روس، امریکہ، چین، ہندوستان اور یورپ جیسے خطوں میں آباد ہے۔ کئی ایسے افریقی ممالک میں بھی مسلمانوں کی کثیر آبادی پائی جاتی ہے جہاں کبھی مسلمانوں کی حکومت نہیں رہی۔ اسی طرح اسپین اور فلپائن جیسے ممالک میں جہاں کبھی مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، آج مسلمانوں کی آبادی ناقابل ذکر ہے۔ اور زیادہ دلچسپی کا امر یہ ہے کہ کئی مغربی جمہوری ممالک مثلاً فرانس، جرمنی، بیلجیم، ڈنمارک، ہالینڈ، سویڈن، امریکہ، جہاں مسلمانوں کی کوئی تاریخ نہیں رہی ہے، اسلام کو سب سے زیادہ تیز پھیلنے والا مذہب تسلیم کیا جا رہا ہے۔ تاریخ کے مطالعے سے یہ بات واضح ہے کہ جنوب مغربی ایشیائی ممالک مثلاً انڈونیشیا اور ملائیشیا تک کبھی اسلامی افواج نہیں پہنچی۔ اس کے باوجود انڈونیشیا آج مسلم آبادی والا سب سے بڑا ملک گردانا جاتا ہے۔ مسلمان ان ممالک تک محض تجارتی راستوں سے پہنچے تھے، لیکن ان کے اخلاق اور برتاؤ کی وجہ سے اسلام مقامی آبادی کے دلوں میں گھر کر گیا۔ یہاں کے مقامی باشندوں نے کبھی اپنے نئے مذہب کی خاطر اپنا رہن سہن، وجہ قطع اور خورد و نوش تبدیل نہیں کیا۔
उन हकाइक के अलावा ये बात भी अज़हर मिन शम्स है कि जिन बिलाद अर्ज में भी मुसलमान फौजी फतूहात के नतीजे में दाखिल हुए थे, वहाँ भी इस्लाम ने न सिर्फ मुल्की इक़्तिदार को तब्दील किया बल्कि इंसानों के दिल व दिमाग को मशहूर किया। और सिवाय स्पेन और फिलिपाइन के इस्लाम की बसात सियासत कभी न पलटी जा सकी। इस्लाम के ज़ेर तसल्लुत इलाकों में जिन अफराद और फ़िरक़ों ने अपने आबाई और मुकामी एतक़ाद पर जमा रहने का इरादा ज़ाहिर किया, वह आज भी उन ममालिक में मुतदबा तादाद में मौजूद हैं। उन्हीं एतक़ाद और मजहबी रसूम व रिवाज की आज़ादी दी गई। लबनान की निस्फ़ आबादी आज भी ईसाई मजहब की पैरोकार है और मिस्र में कब्ती ईसाइयों की तादाद 10% के करीब बनती है। वहाँ उनके चर्च और उनका तहजीबी और इल्मी वर्सा महफूज है। मिस्र में अबू लहूल का बुत और अबू सिम्बल के मनादिर आज भी सियाहों को दावत नज़ारा देते हैं। ईरान के कदीम दारुल खिलाफा पुरसी पुलिस को सरकारी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। इंडोनेशिया में बर्बाडोर के मनादिर और जज़ाइर बाली की हिंदू सकाफत को बकादवाम हासिल है। वहाँ के कदीम हुक्मरानों के जुल्म व जोर ने इस्लाम को वहाँ नफूज व कबूलियत बख्शी। अब ज़रा खुद हमारे मुल्क हिंदुस्तान पर नज़र डालिए। ये सही है कि इस्लाम की इब्तिदा सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह के हमले से हुई, मगर केरला में इस्लाम की आमद तकरीबन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद से ही हो चुकी थी। जज़ीरा नुमाए हिंद के मगरबी साहिलों पर 11वीं से 13वीं सदी के दरमियान ही कई मुस्लिम बस्तियों की तारीख मिलती है। 13वीं सदी में हिंदुस्तान आए सियाह इब्न बतूता ने अपने सफरनामे में ऐसी कई बस्तियों का हवाला दिया है। यहाँ तक कि 16वीं और 17वीं सदी के दिल्ली के मुगल हुक्मरां केरला में मुसलमानों की मौजूदगी से लाइल्म थे और पुर्तगीज़ी गासिबों ने मुगल हुकूमत से ये इकरारनामा हासिल कर लिया था कि वह बहरिया अरब में बहरी कज़ाकों के खिलाफ कार्रवाई में आज़ाद होंगे और मुगल उसे दस्त दराजी या दखल अंदाजी से ताबीर नहीं करेंगे। हिंदुओं के अंधे एतक़ादात की वजह से भी इस्लाम को अपनी बसात फैलाने का मौका मिला। केरला के हिंदू ये एतक़ाद रखते थे कि समुंदरी सफ़र उनके एतक़ाद को नेस्त व नाबूद कर देगा, लिहाजा ट्रांकोर के राजाओं ने अरब ताजिरों को साहिल पर बसने, मकामी ख़वातीन से शादी करने और बहरी तजारत से मकामी लोगों को फैज़याब करने की पॉलिसी बनाई। बल्कि कहा जाता है कि उन्होंने मुनादी करा दी कि तमाम मकामी माहिकीर अपने एक लड़के को मुसलमान बनाएंगे और उसकी परवरिश उस अंदाज से करेंगे कि वह बहरी तिजारत को अपनाए। इस तरह इब्न बतूता ने अपने साहिली खित्तों के असफार में कई मुस्लिम बस्तियां देखी और अपने सफरनामे में उनका तस्करा किया। वह कालीकट से ही मालदीव के लिए रवाना हुआ। शिमाली हिंदुस्तान में भी कहीं इज्तिमाई कबूल इस्लाम के वाक़यात नहीं मिलते। सिंध के अवाम राजा दाहिर से उस कदर मुतनफिर और उसके दौरे हुकूमत से इतने नाला थे कि उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम और उसके इक़्तिदार को खुश आमदीद कहा। जब दमिश्क के उमवी खलीफा सुलेमान मरवान के हुक्म पर मोहम्मद बिन कासिम को गिरफ्तार करके दमिश्क रवाना कर दिया गया तो सिंध के अवाम रो पड़े और उन्होंने गेरज के मुकाम पर उनका बुत बना डाला। हवाला के लिए देखिए विलियम जैक्सन की हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मोहम्मद बिन कासिम की फौजों में जाट और मेदी नामी फिरके के बेशुमार लोग शामिल हुए। उन्होंने जालिम हुक्मरां दाहिर के बजाय एक अजनबी फौजी सिपह सालार के अफवाज में दाखिल होने को तरजीह दी। उन कबीले के अफराद को शहसवारी करने, सरों पर पगड़ी बांधने और कीमती लिबास जेबतन करने की ममानियत थी। उनकी हैसियत महज लकड़हारों और शक्के पानी पिलाने वालों की होकर रह गई थी। हवाला के लिए देखिए प्रोफेसर ऐशोरी प्रसाद की किताब
हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, सफ़ा 55-56। हिंदुस्तान में इस्लाम उन इलाकों में तेजी से फैला जहां उससे केवल बुद्ध मत के मानने वाले रहते थे। हालांकि आवाम पर बुद्ध मत की गिरफ्त ढीली पड़ चुकी थी। उसी तरह पंजाब, सूबा सरहद और बंगाल वगैरह के इलाकों में बुद्ध मत राइज था, मगर आवाम ब्राह्मण राजाओं के जुल्म और सितम का शिकार थे। आमतौर पर बुद्ध मत के पैरोकार मजालिम का शिकार होकर अपने इलाकों से हिजरत का फैसला करते थे, मगर जब वह दीन इस्लाम से मुतारुफ हुए तो उन्होंने उसके दामने आफियत में रहने को तरजीह दी। खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब उस इलाके के अहवाल सुने तो उन्होंने मुकामी शहजादों को इस्लाम का तारुफ पेश करते हुए खतूत लिखे। ऐसा ही एक खत राजा दाहिर के बेटे जेत्सिया को मिला। उसने उस पेशकश पर लब्बैक कहा और इस्लाम में दाखिल हो गया। बहवाला विलियम जैक्सन की हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अगरचे मुस्लिम सलातीन पर जबरी तब्दीली मजहब के इल्जामात तो आज आम तौर पर सुनने को मिलते हैं, मगर उस अम्र पर किसी ने तवज्जो नहीं दी कि अलाउद्दीन खिलजी ने इस्लाम में दाखिले पर पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि लोगों के इस्लाम कबूल करने की वजह से जुजिया की वसूलियाबी में कमी वाकई हो रही थी। इस तरह यह कहना भी गलत हुआ कि अलाउद्दीन कोई इंतहाई सेकुलर हुक्मरान था। लोगों की जबरी तब्दीली मजहब के ऐन बरकत सबसे ताकतवर मुगल फरमा रवा अकबर ने हिंदुइज्म की जालिमाना रस्म व रिवाज में इस्लाह की कोशिश की। उसने जो इस्लाहात की उन्हें कोई चाहे तो हिंदुओं के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी भी करार दे सकता है। हर वह रस्म जो अकबर को गलत मालूम हुई, मसलन कमसुनी की शादियां, गुनाहों की माफ़ी की खातिर अंगारों पर चलना और देवी देवताओं पर जानवरों की कुर्बानी चढ़ाना, उनकी ममानियत कर दी गई। उसने सत्य के रिवाज की ममानियत तो नहीं की, लेकिन उसे औरत की इजाज़त से मशरूत कर दिया और बेवा औरतों की शादी के रिवाज को आम किया। उसने शादी के लिए लड़का और लड़की दोनों की इजाज़त को लाजिम करार दिया। बहवाला विलियम जैक्सन की हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अवाम अक्सर अपने हुक्मरानों से बरगुस्ता और नाला ही रहते हैं, लिहाजा मुस्लिम हुक्मरानों के दौर में इज्तिमाई कबूल इस्लाम के वाक़यात नहीं के बराबर मिलते हैं। उसके बरखिलाफ सूफियों और बुजुर्गों की दरगाहें अवाम की अकीदत का मरकज़ रही हैं। यहाँ मरीजों, अपाहिजों, नाउम्मीदी के शिकार, ज़हनी तौर पर परेशान लोगों के लिए रूहानी तस्कीन का सामान हुआ करता था। महरोली बस्ती, निज़ामुद्दीन और अजमेर की दरगाहों से लोगों को रूहानियत, तमानियत, क़ल्ब और सुकून मिलता था, लिहाजा उनको अवाम की मोहब्बत और अक़ीदत दोनों हासिल रही। ये सूफिया कराम अपने सादा तर्ज ज़िंदगी से अवाम को मुतासिर करते थे। दरगाहों के मुंतज़मों को हिदायत दी कि वह हासिल शुदा नजराने, अनाज और फल शाम तक तकसीम कर दे ताकि कल के लिए कुछ बाकी न रहे। तारीखी शवाहिद से साबित है कि हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के दौर में मुस्लिम सल्तनत के दारुल खिलाफत दिल्ली पर 4 बार हमले हुए और दिल्ली की चूल्हें जला दी गई, मगर किसी हमलावर ने उन खानकाहों को छुआ तक नहीं। उस्ताद को अपने जहन नसीह रखे कि रियासत जम्मू कश्मीर की अक्सरियत वस्ता एशियाई सूफियों की बदौलत मुसर्रफ ब इस्लाम हो गई, लेकिन उन पर सदियों तक जम्मू के डोगरा राजा मुसल्लत रहे। उसके बरकस निज़ाम ऑफ हैदराबाद की रियासत में 1948 के पुलिस एक्शन तक मुसलमानों का तनासुब आबादी 12% तक रहा, जबकि कुतुब शाही और आसिफ जाही दौर के तौसीत से ये रियासत तकरीबन 400 बरस तक मुस्लिम हुक्मरानों के ज़ेर हुकूमत रही। पंजाब के जालंधर के इलाके में सुल्तानी जाटों की एक कम्युनिटी पाई जाती है जो सूफी सुल्तान साकी सरवर के मोतकदीन कहलाते हैं। साकी सरवर का मकबरा शाहकोट यानी मौजूदा पाकिस्तान में है। उस फिरके के लोग आज भी सिर्फ हलाल गोश्त ही खाते हैं। ये ज़्यादातर किसान हैं और सिर्फ हुक्का पीते हैं। ये अपने गांव के मुजाफात में सुल्तान ज़ियारत नामी मुख्तसर सी दरगाहें बनाते हैं जो हर जुमेरात को साफ की जाती है और वहां समा रोशन की जाती है।
भारत की आज़ादी तक ये किसान यात्रा की शक्ल में शाहकोट जाया करते थे। सिखों की हुकूमत के दौर में मुल्तान के गवर्नर ने उस यात्रा की ममानियत कर दी और आने वालों पर 100 रुपये जुर्माना आयद करना शुरू किया, मगर उस ममानियत के बावजूद अकीदतमंद वहां बगैर से ज़ियारत जाया करते थे। लुधियाना और जालंधर गेजेटर में उसके तस्करे मिलते हैं। केनिया, तंजानिया और मेडागास्कर पर मुसलमानों ने कभी फौज कुशी नहीं की, मगर उन ममालिक में मुसलमानों का तनासुब खासा है। नंबर 1, तंजानिया की 70% आबादी मुसलमान है, मगर उन पर हुकूमत सदा से ईसाइयों की रही है। नंबर 2, मशरिकी यूरोप के ममालिक पर उस्मानी तुर्कों ने तकरीबन 5 सदियों तक हुकूमत की, मगर सिवाय अल्बानिया के जहां मुसलमानों का तनासुब 90% है, और बोस्निया हर्सिगोविना जहां मुसलमान 44% है। मुसलमान बेशतर ममालिक में नाकाबिले लिहाज अक़लियत हैं। नंबर 3, उसके बरखिलाफ स्पेन, जिस पर मुसलमानों ने तकरीबन 800 बरस 712 ईस्वी से 1492 ईस्वी हुकूमत की, मुसलमान कभी अक्सरियत में नहीं रहे। उस दौरान ईसाइयों और यहूदियों को मजहबी आज़ादी हासिल रही। 1492 में सुकूत इंदलस के बाद मलिका आयशा बेला के हुक्म पर उनको जबरी तौर पर ईसाई बनाया गया। जजीरा नुमाए स्पेन से निकल जाने को कहा गया। जिन्होंने हुक्म अदोली के उन्हें जलावतन कर दिया गया। नंबर 4, उर्दन, शाम और इराक में आज भी मुकामी ईसाइयों की आबादी पाई जाती है। नंबर 5, त्यूनिस और ईरान में आज भी यहूदियों के कदीम फिरके पाए जाते हैं। त्यूनिस में यहूदी तजार बड़ी बड़ी कंपनियां चलाते हैं। नंबर 6, बांग्लादेश की 12% आबादी हिंदू है और मुल्क का दारुल खिलाफत ढाका है, जो हिंदू देवी ढाकेश्वरी के नाम से माखूज है, और मुल्क की इस्लामी तंजीमों ने कभी ढाका का नाम तब्दील करने की कोई तहरीक नहीं चलाई। नंबर 7, एक दिलचस्प अमर यह भी है कि मंगोलों ने इस्लामी सल्तनतों पर हमला करके उनको तबाह व ताराज तो कर डाला, लेकिन खुद दाखिले इस्लाम हो गए और इस्लामी सकाफत को अपना लिया। ये तारीख का एक नादर वाक़या है कि फातिहीन ने मफ्तूहीन के मजहब को कबूल कर लिया। उन मज़कूरा बाला हक़ाइक़ के पेश नज़र ये साफ है कि इस्लाम की पेशकदमी और तौसिया में तलवार और जबर का रोल कहीं नज़र नहीं आता। सर थॉमस आर्नल्ड के अल्फाज उसकी शहादत देते हैं। वह लिखते हैं कि इस्लाम की तौसिया उन तख़य्युलाती इंसानों के हाथों अमल में नहीं आई जिनके एक हाथ में तलवार और दूसरे में कुरान था, बल्कि उनकी तौसिया में वह किरदार शामिल था जो कुरान करीम ने तरतीब दिया था और जिसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार से रोशनी मिली थी। आज भी मगरिब में इस्लाम की अपील लाखों दिलों को महसूर कर रही है। खुद 11 सितंबर के बाद हजारों इंसानों ने इस्लाम के गहरे मुतालिया और तजज़िया के बाद इस्लाम को बिरज़ा व रग़बत कबूल किया है। तहकीक बताती है कि उनमें से 70% नौ मुस्लिम ख़वातीन हैं। उन हक़ाइक़ से खुद बखुद इस इल्ज़ाम की कलई खुल जाती है कि इस्लाम की तौसिया में जबर, दबाव, जोर, तलवार और जंगों का कोई रोल रहा है। अगर ऐसा ही होता तो कम अज कम 21वीं सदी के इस दौर में इस्लाम को खैरबाद कहने का रुझान ज़्यादा नुमाया होता। अगर ये दलाइल उस सिलसिले की बदगुमानियों को दूर करने के लिए काफ़ी हो तो इस्लाम मुखालिफिन को अपने गुमराह कुल प्रोपेगंडा से बाज आ जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो था। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और दुआओं में याद रखें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो नई टॉपिक के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।